love you, we love you, we love you, we love you. Jesus. Baba, we love you, we love you, we love you, Lord. We love you, Jesus. Take us to the deep, to the deep, to the deep. Take us to the deep, to the deep, oh. Take us to the deep. The presence of the Lord is here. परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर है. The hand of the Lord is, holding my hand and He's taking me to the deep. परमेश्वर के हाथ मेरे हाथ को थामे हुए हैं जो गहराई में लेकर जा रहा है. Child of God, this is the divine moment of personal encounter. परमेश्वर के लोगों, ये वो समय है जब परमेश्वर हमसे मुलाकात करने को आता है. God is visiting you right now. परमेश्वर इस समय आपसे मुलाकात करने आ रहा है. Those who are under the sound of my voice, जो मेरी आवाज को इस समय सुन रहे हैं, may you enter into the realm of His manifestation. वो उसके प्रकटीकरण के उस स्तर में प्रवेश करने पाए. Thank you, Father. धन्यवाद पिता. Take us to the deep. हमें गहराई में लेकर चल. Come on, make this prayer इस प्रार्थना को दोहराएं. and say, कहें, take us to the deep. हमें गहराई में लेकर चलें प्रभु. Take us to the deep. हमें गहराई में लेकर चलें. गहराइयों में मुझे ले चल प्रभु. पवित्र पवित्र मैं गाता रहूं. गहराइयों में मुझे ले चल प्रभु. पवित्र पवित्र मैं गाता रहूं. जहां तू और मैं रहे. जहां तू और मैं रहे. The hand of the Lord is taking you to the deep. परमेश्वर का हाथ आपको गहराई में लेकर जा रहा है. Into the deeper dimension. और गहराई के स्तर में. Bible says deep calls onto deep. और बाइबल बताती है कि गहराई गहराई को बुलाती है. There is a divine call from the deep. और ईश्वरीय बुलाहट है जो गहराई से आती है. I tell you that in this season, God is looking for that one person who is ready to come into the deep. परमेश्वर इस मौसम में एक व्यक्ति को खोज रहा है जो गहराई में जाने के लिए तैयार Who है. is ready to dive deep in God. जो परमेश्वर में गहराई में उतरने को तैयार है. Hallelujah. हालेलुया. Oh, when you go into the deep, what you know, what you have experienced doesn't matter. जब आप गहराई में उतरते हैं तो वो आप क्या देखते हैं, क्या अनुभव करते हैं, फर्क नहीं पड़ता. It's because you are going to experience the newness of God. क्योंकि आप नएपन का अनुभव करेंगे. Oh, everything will be new for you. हर एक चीज आपके लिए नई होगी. Those who refuse to settle in one place, वो जो आप एक स्थान पर ठहरने से मना कर देंगे, for them there is a divine call from the deep. उनके लिए एक बुलाहट है जो गहराई से आती है. Hallelujah. हालेलुया. Turn with me to the book of Psalms, chapter number 107, and read with me the 23rd verse. और आप मेरे साथ निकाल सकते हैं भजन संहिता उसका 107 अध्याय और उसकी 23 आयत को पढ़ेंगे. They that go down to the sea in ships, that do business in great waters. जो लोग जहाजों में समुद्र पर चलते हैं
और महासागर पर होकर व्यापार करते हैं। I tell you, child of God, that those who are ready to go, deep down वो जो तैयार हैं गहराई में जाने के लिए, in great waters, वो उस महासागर में there is a different realm opening for you. अब उनके लिए एक नए स्तर को परमेश्वर खोलेगा। God wants you to partner him in the deep. परमेश्वर आपको एक पार्टनर बनाएगा कि आप गहराई में जाने पाए। Hallelujah. हालेलुया। Oh, what looks like impossible on the shore is possible in the deep. जो किनारे पर आपको असंभव लगेगा वो संभव हो जाएगा जब आप गहराई में So जाएंगे। don't be satisfied with shore experience. तो आप वो किनारे के अनुभव से अपने आप को संतुष्ट ना करें Oh, don't be satisfied with ankle deep water. और संतुष्ट ना हो जाएं घुटनों भर पानी से। God is launching you tonight into deep. परमेश्वर आज की शाम में आपको गहराई में उतार रहा है। Hallelujah. हालेलुया। In the Gospel of Luke chapter number 5, और लूका रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय को हम Bible देखेंगे। says Simon and his brother tried to catch the fishes. और पतरस और उसके भाई जब वो मछली पकड़ने के प्रयत्न कर रहे थे, Oh, they worked hard whole night, उन्होंने पूरी रात परिश्रम किया, but the result was zero. लेकिन परिणाम उसका कुछ भी नहीं आया। There was no result. कुछ परिणाम नहीं आया। But when Jesus was on their boat, लेकिन जब यीशु उनकी नाव पे आए, Bible says बाइबल बताती है, Jesus, asked Peter to put down the boat in the deep. यीशु ने पतरस से कहा कि अपने जालों को वो गहराई में डालो। It says, turn with me to the Gospel of Luke chapter number 5 verse number 4. अब लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और 4थी आयत को निकाल सकते हैं। It says, when he had finished speaking, he said to Simon, put out into deep water and let down the nets for a catch. और यहाँ पर लिखा है, जब वे बातें कर चुके तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जालों को डालो। The result that you are desiring to see at the shore is not enough. आप वो जो परिणाम की अपेक्षा कर रहे हैं किनारे पर ठहर कर, वो काफी नहीं है। The result that you are trying to see cannot be done on the shore. आपकी इच्छा अनुसार जो परिणाम की आप अपेक्षा कर रहे हैं वो किनारे पर नहीं मिलेगा। Oh, you have to change the location. आपको अपने स्थान को बदलना जरूरी है। Somebody listening to my voice, कोई है जो मेरी आवाज को सुने। my brother, my sister, you need to change the location. मेरे भाई मेरी बहन, आपको अपने स्थान को बदलने की जरूरत है। Oh, it's time to pack your bag and then get ready for this divine transition. अपने बैग को आप पैक कर लें और इस ट्रांजिशन के लिए, आप परिवर्तन के लिए तैयार हो जाएं। Because God is going to launch you into deep. क्योंकि परमेश्वर आपको गहराई में ले जाने के लिए तैयार है। Here, Simon and his brother, tried to catch fish. यहाँ पर पतरस और उसके भाई प्रयास कर रहे हैं मछलियां पकड़ने Oh, का। they worked hard whole night. उन्होंने पूरी रात परिश्रम किया। And Bible says that they concluded the day with failure. और उन्होंने उस पूरे दिन को वो हारे के साथ में बिता दिया। They were washing their nets. अपने जालों को धो रहे थे। Oh, child of God, just know that your conclusion is God's continuation. परमेश्वर के लोगों, आप इस बात को जान लें कि आपका किसी बात का निष्कर्ष निकालना वो परमेश्वर की ओर से वो जारी रखने का काम है। One more time, your conclusion becomes God's continuation. आप जहां पर हार मान लेते हैं वहां पर परमेश्वर अपने काम को शुरू करता है। So reposition yourself in the deep. अपने आप को फिर से आप पुनः स्थिति में लाएं और गहराई में जाएं। Hallelujah. हालेलुया। Oh, I tell you, people of God, what God has preserved will not go into others' net. और जो परमेश्वर ने सुरक्षित रखा है वो दूसरे के जाल में नहीं जाएगा। Fish will come, will be attracted towards your net.
वो मछलियां आपकी जाल की ओर आकर्षित होकर आएंगी। So engage yourself into deep waters. तो अपने आप को बनाए रखें उस गहराई के पानी में। When you are coming out of the deep, oh, your result will be different. और जब आप उस गहराई में से होकर आएंगे तब आपका परिणाम अलग होगा। When you are obedient to the voice of God, जब आप आज्ञाकारी होंगे परमेश्वर की आवाज के प्रति, your result will be different. आपका परिणाम अलग होगा। Listen to me मुझे ध्यान and से listen to me very well. मुझे ध्यान से सुने। Things of this world cannot supersede the things of God. इस संसार की चीजें परमेश्वर की चीजों पर अधिकार नहीं जता पाएंगी। We have the superior voice. हमारे पास वो सर्वोच्च आवाज है, And when we obey the voice, और जब हम आवाज को आज्ञा को मानते हैं we're gonna see great results. तब हम वो बेहतर और बड़े परिणामों को देखेंगे। So God is calling you into deep. तो परमेश्वर आपको गहराई में बुला रहा है। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Close your eyes. अपनी आंखों को बंद करें। We're gonna sing this song one more time. एक बार फिर से इस गीत को गाएंगे and just dive deep into His और presence. उसकी उपस्थिति में और गहराई में जाएंगे। Thank you, Lord. Take us to the deep. Take us to the deep. Take us to the deep, oh Lord. गहराइयों में मुझे ले चल प्रभु, पवित्र पवित्र मैं गाता रहूं। गहराइयों में मुझे ले चल प्रभु, पवित्र पवित्र मैं गाता रहूं। जहाँ तू और मैं रहे, जहाँ तू और मैं रहे। One more time. गहराइयों में मुझे ले चल प्रभु, पवित्र पवित्र मैं गाता रहूं। गहराइयों में मुझे ले चल प्रभु, पवित्र पवित्र मैं गाता रहूं। जहाँ तू और मैं रहे, जहाँ तू और मैं रहे।